लेसन नंबर 7 ट्रायंगल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब एक मूवी शुरू होता है तो एक डिस्क्लेमर आता है, पता है? डिस्क्लेमर मतलब एक वार्निंग, और मैं वार्निंग दे रहा हूं कि लेसन नंबर 6 अच्छे से नहीं आएगा तो 7 पे थोड़ा असर पड़ेगा। बट दैट डजंट मीन कि 6 नहीं आता इसलिए 7 बिल्कुल नहीं आएगा। सो पे अटेंशन, एटलीस्ट half the chapter you will understand directly, but other half is related to chapter 6. So make sure you are not ignoring lesson 6. Unit test में lesson 6 ही है next time, single chapter, only textual sums. So make sure you prepare well and do it properly. First, take a notebook and write down some concepts which you must remember. In your notebook, make a list of concepts. When this video is running, it's for your own good. It's not homework. Concept number 1. Straight line and branch is equal to linear pair is equal to supplementary angle. Now draw with pen only directly very small figure and write down A, B, C, O, and write down the concept angle AOC plus angle COB is equal to 180. This is the concept of linear pair. Number 2. Sum of angle 90. Therefore, complementary. Complementary angles मतलब दो एंगल जिसका टोटल 90 डिग्री होता है. And draw this small figure. A, O, B, C, and write down the equation angle AOC plus COB is 90, complementary angles. Third, VOA मतलब vertically opposite angles are same. Vertically opposite angles are same. Draw across A, B, C, D और बीच में O. तो ये रेड एंगल और ये रेड एंगल सेम है. So first relationship is angle AOB plus angle COD. प्लस नहीं, एंगल AOB is equal to COD. That's the concept. Vertically opposite angles are same. और दूसरे दो vertically opposite angles are these, which I am doing in blue. तुम डार्क कर सकते हो. Therefore, the second relationship is angle AOD is equal to BOC. That's the third concept. Vertically opposite angles are always same. Fourth concept, AB parallel to CD and XY transversal. जब दो लाइन पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल है तो सबसे पहले ड्रॉ करो. थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाना बिकॉज देयर इज अ लॉट टू राइट डाउन. This is from lesson 6. AB parallel to CD, X, Y, Z, W. ZW थोड़ा सा दूर लिखो बिकॉज वहां पे नंबर आने वाला है. Now number all the angles so we can write the concepts together.
दिस इज द रिविजन फॉर दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड चैप्टर 6। अगर दो लाइन पैरेलल है और एक लाइन इसको कट करती है तो कट करने वाली लाइन को हम बुलाते हैं ट्रांसवर्सल। सो दिस इज द ट्रांसवर्सल। एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 AB parallel to CD and XY transversal. Therefore, first is corresponding angle. ये जो नोटबुक में लिख रहे हो उसके पेजेस फाड़ के हर एक सम के साथ रखने का, इट्स लाइक अ चीट शीट। चीट शीट मतलब लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज और लिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है 1 विच इज इक्वल टू 5, 2 is equal to 6, 3 is equal to 7, 4 is equal to 8. Second is alternate interior angles are same. ब्रैकेट में Z बनाओ, Z। तो Z फॉर्मेशन जब भी हो तो ऑल्टरनेट एंगल्स आर सेम। चैप्टर 6 के सारे वीडियो के सारे सम में मैं ऐसे डार्क करके बताता था कि देखो ये Z बन रहा है, इसका मतलब एंगल 2 एंड एंगल 8 आर सेम। एंगल 2 इज इक्वल टू 8 और दूसरा Z ऐसे बन रहा है, देयरफॉर एंगल 5 एंड एंगल 3 आर सेम। दे आर कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 2 is equal to 8, 3 is equal to 5, and C is interior angles on same side of transversal, which is C formation। उल्टा C या सीधा C। C formation कहाँ है देखो। और हाँ, by the way, finish the sentence. Interior angle on same side of transversal are, corresponding angles are same, alternate interior angles are same, but interior angle on same side of transversal are not same, they are supplementary. Let me show you where they are. C formation is here. Therefore 2 and 5 are the two angles, and 2 plus 5 180. दूसरा C formation इस तरफ है, 3 and 8, 3 plus 8 180. So what you will write down, 2 plus 5 is 180 and angle 3 plus 8 is 180. This is the basis of chapter number 6. 4 हो गया। फिफ्थ कॉन्सेप्ट लिखो, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल, छोटा सा एक ट्राइंगल ड्रॉ करो and highlight the three angles in same manner. When you highlight it in same manner, it means the angles are same. और यहाँ पे dash 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 मतलब three sides are same. Angle A is equal to B is equal to C, AB is equal to BC is equal to CA. ये तो पता था। And all angles are equal to 60 and all sides are same, all angles are same, all angles are 60. Sixth, isosceles triangle. Draw a triangle जिसमें standing two sides are longer, the base is smaller. मतलब ये दो साइड सेम है, यहाँ पे डैश मत करना। इट मीन्स दिस एंड दिस साइड इज सेम, दैट इज AB इज इक्वल टू AC। और AB AC सेम है, देयरफॉर एंगल B और एंगल C सेम है। ऑपोजिट एंगल्स, जो दो साइड सेम है उसके सामने का एंगल हमेशा सेम होता है। सो AB इज इक्वल टू AC एंड एंगल AB के सामने C
AC के सामने B. That's the isosceles triangle. अगर दो साइड सेम तो दो एंगल सेम, दो एंगल सेम तो दो साइड सेम. दिस इज इंटरचेंजेबल. They are related to each other. So supplementary, complementary, equilateral, isosceles, alternate triangle, interior opposite angle, corresponding angle, vertically opposite angle. So I think we have done enough. और कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो आई विल ऐड टू द लिस्ट. यू ऑल्सो ऐड टू द लिस्ट. नाउ टेक अ फ्रेश पेज and start writing. This is your homework. You have to do all the sums which is done in the video starting from example 1. In the figure, OA is equal to OB, OD is equal to OC. AB, CD. जी मैं फिगर खुद बनाता हूं एक बार. सिर्फ AB, CD. तुम भी बनाओ AB, CD. Don't change anything. It should be as per textbook. But AB and CD intersect each other. Join AD. Join BC. अब क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इंफॉर्मेशन को फिगर में डालना सीखो. फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन इज OA इज इक्वल टू OB. तो ये O है. OA is equal to OB is shown like this. इसकी कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि फिगर में डैश किया हुआ है. OD is equal to OC. तो OD OC सेम. डबल डैश. क्यों डबल डैश? क्योंकि चारों सेम नहीं है. सी डैश 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 का मतलब है चारों सेम, बट चारों सेम नहीं है. OD इज इक्वल टू OC. सो डबल डैश इक्वल टू डबल डैश. अब ये इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं. शो दैट मतलब प्रूव दैट ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू BOC एंड AD पैरेलल टू BC. अब इसको मारो, गोली नहीं चाहिए फिलहाल. वी विल यूज आवर ओन फिगर एंड प्रूव द फर्स्ट थिंग. ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू BOC. Pause. Take a pause. Don't copy. Understand what is this symbol. This is called congruent. This is called equal. And this is called similar. Geometry में equal, similar और congruent होता है. This is 9th standard lesson 7. इक्वल तो ठीक है एंड सिमिलर इज 10th स्टैंडर्ड लेसन 6. तो जितना भी सीखोगे वो सब कुछ 10th में आने वाला है. सो प्लीज पे अटेंशन. नाउ आई एम रियली स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 7. व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंट? कॉन्ग्रुएंट मीन्स दैट ट्राइंगल नंबर 1 and triangle number 2 are 100% same. They are exactly the same. How and why? ABC is congruent to XYZ. अगर ABC XYZ congruent है तो उसका मैं क्या मतलब निकाल सकता हूं? मैं therefore क्या लिख सकता हूं? The entire playground is wet. Therefore what? What can I conclude? Entire playground is wet. Therefore it rained some time ago. That is one conclusion. Or the Mali Kaka came and have watered the ground so that grass can grow. बस उतना ही होगा. बिल्ली आके सुसु तो करके नहीं गई होगी. तो पूरा ग्राउंड वेट है, उसके कंक्लूजन होता है. वैसे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. ट्राइंगल ABC is congruent to triangle XYZ. Therefore what? Therefore AB is equal to XY. ये दो साइड सेम है.
देयरफॉर BC इज इक्वल टू YZ, ये दो सेम है. देयरफॉर CA इज इक्वल टू ZY, ये सेम है. एंड ऑन टॉप ऑफ इट एंगल A इज इक्वल टू एंगल X, तो ये एंगल डार्क is equal to ये angle dark, therefore I am using same symbol. Angle B is equal to Y dot dot and angle C is equal to Z cross cross. Congruent का मतलब है the corresponding sides are equal to each other and the corresponding angles are equal to each other. Now pause the video and copy as concept 1 of this chapter. Copy this, copy the two diagrams and copy the most important conclusion, that what do you mean by the triangles are congruent. We mean the three sides are same and three angles are same. Pause the video and copy it. Continuing, write concept 2 and try to draw ditto triangles, which I am drawing. Name them P, Q, R, D, E, F. Symbolically, dash PR dash or DE dash, PQ double dash, DF double dash, QR triple dash, EF triple dash. And write in the corner, no info about angles. This is concept 2. No information about the angles is given. But we know that the three sides are same. लिखो triangle PQR is congruent to triangle DEF because what is the reason कि PQR और DEF 100% same है? The reason is PR is equal to DE, ये डैश और ये डैश PRDE, PQ is equal to DF and QR is equal to EF. तो तीनों साइड एक दूसरे से सेम है. दैट इज इनफ टू प्रूव दैट द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और इसको कहते हैं SSS क्राइटेरिया. दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बीच में 6 चीजें सेम होती है. साइड नंबर 1, साइड नंबर 2, साइड नंबर 3, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3. ये 6 के 6 चीज सेम होती ही है, देन ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट. बट इट इज नॉट नेसेसरी कि एंगल्स इन्वॉल्व करे. सिर्फ 3 साइड सेम दिखा सकते हो तो तुम आराम से प्रूव कर सकते हो दैट ट्राइंगल्स आर congruent. So PQR is congruent to DEF and the reason is SSS criteria because I can see in the figure. तो क्या? तो ये लिखो आगे, therefore we can conclude that angle P is equal to angle D, angle Q is equal to angle F, angle R is equal to angle E. This is your conclusion. ये सम में दिया नहीं है, but it is true. And why is it true? Because the triangles are congruent. And why are the triangles congruent? Because SSS criteria use करके हमने prove किया है.
दोनों फिगर के बाजू में गिवन लिख दो. सो द फिगर्स आर गिवन and you prove the triangles congruent basis side criteria. And after proving that the triangles are congruent, therefore the remaining three parts are congruent. ट्रिपल डैश के सामने P, ट्रिपल डैश के सामने D, P is equal to D. सिंगल डैश के सामने Q, सिंगल डैश के सामने F, Q is equal to F. और डबल डैश के सामने का एंगल R, डबल डैश के सामने R, R इज इक्वल टू E. सो यू सी, जरूरी नहीं है कि पिंक लेफ्ट साइड पे है तो यहां पे पिंक आएगा. ट्राइंगल घुमा के भी रख सकते हैं. यू हैव टू गो बाय मैथमेटिकल लॉजिक दैट विच एंगल इज इक्वल टू विच एंगल. पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस एज कॉन्सेप्ट नंबर 2. Concept number 1 was just the concept of congruence. के congruent मतलब क्या? 3 side same, 3 angle same. वैसे ट्राइंगल को congruent बुलाते हैं. और congruent प्रूव करने का पहला क्राइटेरिया है SSS. अब आगे कॉन्सेप्ट नंबर 3. लिखो गिवन एंड ड्रॉ 2 triangles and name them DEF XYZ. F को हाईलाइट करो पूरा ब्लैक एंड सेम वे Z को हाईलाइट करो. DF XZ डबल डैश, EFYZ सिंगल डैश. ज्योमेट्री में इसका मतलब ये है दैट EF और YZ की लंबाई सेम है, DF और XZ की लंबाई सेम है, एंगल F एंगल Z सेम है, बाकियों का कुछ पता नहीं. ट्राइंगल DEF is congruent to triangle XYZ because, अब हम प्रूव करेंगे रीजन देके कि क्यों ये दो ट्राइंगल 100% सेम है. बिकॉज DF इज इक्वल टू XZ, एंगल F इज इक्वल टू एंगल Z एंड EF इज इक्वल टू YZ. जो फिगर में दिख रहा है वो मैंने लिखा, बट इन विच फॉर्मेट डिड आई राइट? साइड, एंगल, साइड. तो देयर इज अ रूल कि किसी भी दो ट्राइंगल में अगर दो साइड सेम है दो साइड सेम है का मतलब DF XZ सेम है, EF YZ सेम है, एंड इन एडिशन टू दैट अगर बीच वाला एंगल भी सेम है, then guaranteed these two triangles are congruent. Therefore, what will you write? The figure was given, you have written the reason, and then you will write SAS criteria. SAS criteria मतलब साइड एंगल साइड. पहले वाला था SSS, ये है SAS. ओके, आई थिंक ये लाल वाला हटा देते हैं. SAS क्राइटेरिया यूज करके हमने प्रूव कर दिया. और एक बार ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो क्या? देयरफॉर व्हाट कैन यू कंक्लूड? डबल डैश के सामने वाला एंगल, डबल डैश के सामने वाला एंगल सेम है, एंगल E इज इक्वल टू एंगल Y. सिंगल डैश के सामने, सिंगल डैश के सामने सेम है,
D is equal to X, and the third line DE and XY are also same. That's concept number 3. Side angle side theorem. What was given? Given was the figure. फिगर देख के हमने क्या किया? हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया. कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए थियरम कौन सी यूज किया? क्राइटेरिया क्या यूज किया? साइड एंगल साइड. And after proving triangles congruent, the 3 conclusions are the remaining angles and the remaining sides are equal. Pause the video, copy everything, and then write concept number 4. Given to draw two triangles, any shape, any size, name them ABC, PQR. A डार्क ब्लैक करो, Q डार्क ब्लैक करो, C पे एक आर्क करो, P पे एक आर्क करो, AC और PQ पर डैश डैश करो. This much is given. Triangle ABC is congruent to triangle PQR. Yes, but why? उसका रीजन देना पड़ेगा. Triangle ABC is congruent to PQR because एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q. कैसे पता? तो फिगर में ये दोनों डार्क की है, मतलब सेम है. ज्योमेट्री. AC इज इक्वल टू PQ, ये रहा, डैश डैश, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल P. दिस इज कॉल्ड एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, ASA. Because this is an angle which is same, this is an angle which is same, और वो दो एंगल के बीच की साइड चाहिए. मैंने लास्ट टाइम रेड कलर हाईलाइट करके दिखाया था, फिर से दिखा रहा हूं. एंगल A and Q are same. AC and PQ, C and P, एंगल C and P are same. और वो दो एंगल के बीच की साइड, A और C के बीच में AC, P और Q के बीच में PQ, are also same. Therefore, angle side angle is a criteria we use to prove कि ये दोनों ट्राइंगल 100% सेम है. और एक बार ये प्रूव हो गया तो तुम कंक्लूजन लिख सकते हो. Therefore क्या? Therefore जो बचे हुए पार्ट्स है, मतलब एंगल B is equal to एंगल R. That is possible. That is true because triangles are congruent. Why are triangles congruent? Because ASA criteria fits properly. और क्या लिख सकते हैं? BC is equal to QR. And third side AB is equal to PR. This is concept number 4, which is angle side angle criteria. Third was SAS, second was SSS, and first was just general information कि दो ट्राइंगल सेम कब होते हैं? जब उनकी 3 साइड और 3 एंगल मैच करें. Pause the video and copy this down. Given is the figure. Triangles are congruent according to ASA criteria, and once they are congruent,
कंक्लूजन, और इसमें कुछ नया सिखाता हूं अब. वॉट एवर इज द कंक्लूजन, यू हैव टू राइट सी पी सी टी. सी पी सी टी जो कंक्लूजन है. दो ट्राइंगल सेम है, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड सी पी सी टी. And your mini homework is to find out the full form of CPCT. Open the textbook, open the digest, Google it, look wherever you want to, but find out the full form of CPCT and apply here कि क्यों लिखा है यार, अपने आप पता चल जाएगा. Concept number 5. Draw two triangles and write given first. Any shape, any size is okay. Make sure they look similar. बहुत छोटे बड़े या अलग शेप नहीं होना चाहिए. ओके, चल से नाम दो एक्स वाई जेड जी एच आई एंड हाईलाइट Z fully, I angle fully. Y पे डॉट, H पे डॉट, डैश डैश. Is this side theorem? No, because दूसरी साइड के बारे में कुछ गिवन नहीं है. Is this angle theorem? जो हमने अब तक देखा भी नहीं, किया भी नहीं है. No, because the G angle and X angle are same or not same, it's not written. Is this side angle side? No, क्योंकि साइड एंगल साइड में दो साइड दी हुई होनी चाहिए, यहाँ पे एक एक साइड सेम है, बाकी पता नहीं. Is this angle side angle? No, because एंगल साइड एंगल में जो भी दो एंगल है उसके बीच की साइड सेम होनी चाहिए. बट है? नो, इट इज नॉट गिवन, देयरफॉर इट इज नॉट एंगल साइड एंगल. दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट विच वी विल राइट. लिखो, ट्राइंगल एक्स वाई जेड is congruent to triangle GHI because angle Y is equal to H, Z is equal to I and XY is equal to GH. This is an angle. This is an angle. और वो दो एंगल की बाहर की साइड. It is called angle side criteria. AAS क्राइटेरिया के हिसाब से ट्राइंगल्स आर एग्जैक्टली सेम. ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एंड इफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयरफॉर वी कैन कंक्लूड कि उसके जो बाकी के पार्ट्स हैं वो भी सेम है, जैसे एंगल x इज इक्वल टू एंगल G. दैट्स द फर्स्ट कंक्लूजन. फिर XZ ब्लैक डॉट के सामने ऐसे देखने का. तो XZ इज इक्वल टू GI एंड बेस आर सेम. YZ is equal to HI. Pause the video and write down this concept number 5, which is angle side criteria. And the last concept, yes, concept number 6. एक और है, मुझे लगा था हो गए. Once again, draw two triangles. Draw a right angle triangle. Name it PQR XYZ. Q90, highlight it.
y90, highlight it. QR is equal to YZ, PR is equal to XZ. This figure is given. Triangle PQR is congruent to triangle XYZ. They are 100% alike. Why? Because angle Q is equal to angle Y, because both are 90. QR नहीं PR, I'll tell you why मैंने PR क्यों पहले लिया. PR is equal to XZ. हाइपो दोनों हाइपोटेनियस है. राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने जो होता है दैट इज हाइपोटेनियस. एंड QR इज इक्वल टू YZ जो एक साइड है, मतलब हाइपो नहीं है. दिस क्राइटेरिया of proving congruent is called RHS criteria. RHS में R मतलब राइट एंगल, H मतलब हाइपो, S मतलब साइड. So whenever in two right angle triangles, if you see that the hypos are same, one side is same, and of course 90 degree is same, then it is enough to prove that the triangles are 100% same. And if the triangles are 100% same, तो उनके बाकी के parts भी same है. तो what can we conclude from this? We can conclude कि ये red हटा देते हैं, थोड़ा clean कर देते हैं. We can conclude डैश के सामने वाला एंगल सेम है, देयरफॉर P इज इक्वल टू X. फिर ब्लू कलर के सामने वाला एंगल सेम है, एंगल R इज इक्वल टू एंगल Z. और बची हुई साइड PQ एंड XY आर ऑल्सो सेम. And this in the language of maths is called CPCT. So total there are 3 parts of this sum. What is given? Based on what is given, what do you prove? With which criteria? And after proving, what is the remaining conclusion? तो ये सीक्वेंस समझ लो तो ये चैप्टर के सारे सम्स इजी हो जाएंगे. फिगर में गिवन क्या है, गिवन के बाद तुम्हें प्रूव क्या करना है, और प्रूव करने के बाद कंक्लूजन क्या यूज कर सकते हो. करना है तो करो, वरना कुछ नहीं. कॉपी दिस एज द लास्ट कॉन्सेप्ट विच इज कॉन्सेप्ट नंबर 6. कॉन्सेप्ट नंबर 6 RHS. सो 1 2 3 4 5 6 कॉन्सेप्ट करने के बाद मैं टेक्स्ट बुक का लास्ट पेज दिखा रहा हूं. दिस चैप्टर्स लास्ट पेज ऑफ द टेक्स्ट बुक टेल्स यू दैट हाउ टू ट्राइंगल कैन बी कॉन्ग्रुएंट. 2 ट्राइंगल एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट है अगर SAS है, साइड एंगल साइड, या ASA है, एंगल साइड एंगल, AAS है, एंगल एंगल साइड, SSS है, साइड साइड साइड, और आखिरी RHS है. तो आई होप यू आर राइटिंग इट विथ द वीडियो, वरना ये सब बहुत डिफिकल्ट लगेगा. सो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट वी लर्न के कॉन्ग्रुएंस होता क्या है. फिर कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने का पहला क्राइटेरिया हमने देखा SSS, फिर देखा SAS, फिर ASA, फिर AAS, और अभी अभी हमने RHS खत्म किया. So these are the 6 fancy ways how you can prove that
the triangles are congruent. Finally, I am going back to what we started. We started with this example जहाँ पे फिगर दिया हुआ था और फिगर में लिखा था OA is equal to OB, OC is equal to OD. And now our job is to prove triangle AOD and BOC are congruent. So go back or draw new figure, write example 1 and write given first. Given OA is equal to OB, OC is equal to OD. That's all. To prove, मैं ये कॉपी करो, AOD congruent to BOC. Triangle AOD is exactly same to triangle BOC. और दूसरा AD parallel to BC. ये. Now starts the main sum, which is proof. How will you prove that these two triangles are congruent? प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ दो चीजें पता है, साइड साइड, और एक चीज नहीं पता. अपने आप पता चल जाएगी, बट पहले ड्रॉ द टू ट्राइंगल्स द वे दे लुक. डोंट चेंज द फॉर्मेट, just draw the way they look. Name whatever their name is, COB या BOC and AOD. OC OD सेम है तो वो करो. OB OA सेम है, करो. एक और चीज ढूंढ के निकालो खुद. एक और चीज है, vertically opposite angles are same. When we started this lecture, I had made you write down कि vertically opposite angles जहाँ पे भी बन रहे हैं वो हमेशा same है. Therefore, पहले ट्राइंगल का एंगल O और दूसरे ट्राइंगल का एंगल O सेम है. This is our मेहनत, this is not given. Now, can you guess कि इसमें कौन सा थियरम फिट हो रहा है? It is side, angle, side. Side, angle, side. SAS theorem fits perfectly क्योंकि दो साइड और उसके बीच का एंगल. What would you write down is very important in geometry. ज्योमेट्री समझ में तो आ जाएगा लेकिन लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है. सिंगल डैश सेम, OA इज इक्वल टू OB. रीजन देना पड़ेगा और रीजन है इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. फिर एंगल ओ सेम. रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. और डबल डैश वाला OD और OC सेम. OD is equal to OC. But I did a small silly mistake. Please pardon me. जब भी तुम दो ट्राइंगल कंपेयर करना शुरू कर रहे हो तो पहले नाम लिखो ट्राइंगल के. इन ट्राइंगल BOC and triangle AOD. But is that what we have to prove? We have to prove AOD BOC. तो BOC AOD क्यों लिया? AOD BOC लो. ओके, तो वापस सिर्फ नाम चेंज कर रहे हैं. AOD BOC. In triangle AOD and triangle BOC, OA is equal to OB because it is given. Angle O is equal to angle O because it is vertically opposite. And last, OD is equal to OC. That is also given. तो AOD के पार्ट्स पहले, BOC के पार्ट्स बाद में. Therefore, triangle AOD is congruent to triangle BOC. Prove हो गया. And reason is SAS criteria.
हर एक चीज का रीजन होता है, ये क्यों सेम, ये क्यों सेम, ये क्यों सेम, और ये तीन सेम, तो ट्राइंगल सेम क्यों, ऐसे एस क्राइटेरिया। दैट्स द एंड ऑफ फर्स्ट प्रूफ दैट। अब सेकेंड प्रूफ दैट देखो, वी हैव टू प्रूव दैट AD एंड BC आर पैरेलल टू ईच अदर। रिमेंबर कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हमें कंक्लूड करने का चांस मिलता है, और वो कंक्लूजन मेरे ऊपर है, मुझे यूज करना है तो करूं वरना नहीं। द कंक्लूजन इज डबल डैश के सामने A और डबल डैश के सामने B सेम है, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। रीजन CPCT। CPCT मतलब पहले जो ट्राइंगल प्रूव कर लिए उसी के पार्ट्स है, तो ऑब्वियसली सेम होंगे बिकॉज ये ट्राइंगल्स दोनों एग्जैक्ट सेम है। एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, तो क्या दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ध्यान से देखो, एंगल A और B सेम है, A B are same, so what? So they are alternate interior angles, means they are forming a Z। और जब कोई Z बनाता है जिसके दो एंगल सेम है तो लाइंस आर पैरेलल। लेसन 6 में क्या सीखा, ओए तेरी, लेसन 6 में क्या सीखा, इफ लाइंस आर पैरेलल तो Z फॉर्मेशन के अंदर के एंगल सेम, और उसका उल्टा, इफ Z फॉर्मेशन के एंगल सेम देन द लाइंस आर पैरेलल। यहां पे A इज इक्वल टू B करके हमने दिखा दिया दैट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सेम, देयरफॉर AD is parallel to BC and AB transversal। That's the end of the first example of the textbook। पहले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के पार्ट्स को सेम बताया, और वो पार्ट्स को चैप्टर 6 का कॉन्सेप्ट यूज करके दो लाइन पैरेलल बताई। सेकेंड एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल 2 एंड राइट गिवन AB इज अ लाइन सेगमेंट, शॉर्ट में लिखो AB उसके ऊपर डैश, एंड लाइन L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट, पॉज एंड जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री और बाइसेक्टर मतलब मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से निकलती हुई 90 डिग्री लाइन, मिड पॉइंट से निकलते हुई 90 डिग्री लाइन, मिड पॉइंट से निकलती हुई 90 डिग्री लाइन। अब देखते जाओ, ब्लैक के लिए ब्लू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि बीच में से निकल रही है और 90 भी है, सो 90 ऐसे दिखाया जाता है, और ये मिड पॉइंट है ब्लैक लाइन का, सो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट आर सेम। सेम वे हियर ऑल्सो द ब्लू लाइन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ब्लैक लाइन के दो इक्वल टुकड़े भी हो रहे हैं और 90 डिग्री भी बन रहा है। बट हियर द ब्लू लाइन इज जस्ट बाइसेक्टर, सिर्फ बीच में से कट रहा है, मतलब ये दो पार्ट सेम है, 90 डिग्री गायब है, दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल, तो परपेंडिकुलर नहीं है। यहां पे द ब्लू लाइन is just perpendicular,
बट बाइसेक्टर नहीं है क्योंकि ब्लैक का मिड पॉइंट तो यहाँ पे है, दिस एंड दिस आर नॉट सेम, इसलिए डैश और ट्रिपल डैश किया है, बट 90 डिग्री तो है, सो इट इज जस्ट अ परपेंडिकुलर। ये कुछ भी नहीं है, ये परपेंडिकुलर भी नहीं है, बाइसेक्टर भी नहीं है, बिकॉज ब्लैक का मिड पॉइंट यहाँ है और एंगल ऑब्ट्यूस एक्यूट 90 डिग्री नहीं है, एंड दिस इज अगेन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, किसका कौन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? लाइन सेगमेंट ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एल, मतलब एल 90 डिग्री पे है और ए सी बी सी सेम है। ये कोई बताएगा नहीं, यू हैव टू यूज इट योर सेल्फ। आई थिंक इट इज टाइम टू गो बैक टू द फर्स्ट लिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड राइट डाउन कॉन्सेप्ट नंबर 7, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। AB is perpendicular bisector of XY. Draw XY, बीच में से निकलता हुआ AB, और वो भी 90 डिग्री पे, X Y A B. AB is the perpendicular bisector of XY. Therefore what? वो कोई नहीं बताएगा। Therefore angle O is 90 degree. ये O, and therefore OX is equal to OY, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है मतलब XY के इक्वल टुकड़े हो रहे हैं। इतना कंक्लूजन पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट नंबर 8, एंगल M is 90, OM is equal to PM, and draw the figure. M 90 है बीच में, OM और PM सेम है, और ऊपर AB। Therefore क्या? तो यहां पे इफ लगाओ, अगर एंगल M 90 है therefore परपेंडिकुलर AB परपेंडिकुलर टू OP। अगर OM PM सेम है तो AB बाइसेक्ट करता है OP को, AB बाइसेक्ट्स OP। Therefore फाइनल कंक्लूजन, AB is perpendicular bisector of OP। 7 and 8 are related। यहां पे था AB is perpendicular bisector of XY, तो क्या? तो एक एंगल 90 और दो टुकड़े सेम। उसकी जगह उल्टा दिया हुआ है कि एक एंगल 90 और दो टुकड़े सेम, तो क्या? तो AB is perpendicular bisector of OP। Going back to example 2, given line segment AB, L perpendicular to AB, L bisects AB, जितना जितना गिवन है। फिर आगे पढ़ो क्वेश्चन, इफ अ पॉइंट P lies on line L, P belongs to L, मतलब पॉइंट P लाइन L के ऊपर है, that's all। show that मतलब prove that। to prove, what do we have to prove? P is equidistant from A and B। P A और B से इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब PA is equal to PB हमारा टारगेट है। डबल डैश बिकॉज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, 90 बिकॉज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंड टारगेट PA PB है।
प्रूफ। अब सोचो, जो भी तुम्हारा टारगेट है वो दोनों जिस ट्राइंगल में आते हैं वो ट्राइंगल को सिलेक्ट करो। चूज दोज ट्राइंगल्स इन विच योर टारगेट कम्स। टारगेट इज पी ए पी बी, और पी ए पी बी वाले दो ट्राइंगल है पी ए सी, पी बी सी। जितना भी पता है वो ये फिगर में रख दो। I know that AC and CB are same. I know that if this side is 90 then this is also 90. ये लेफ्ट साइड एंगल की 90 है तो ये भी 90। और कुछ पता है? एक और चीज है, सोचो। One more thing is very very easy and logical which you can compare between two triangles, and that is PC is equal to PC, क्योंकि वो सेम ही है, कॉमन आर्म। आफ्टर टेकिंग एवरीथिंग इन द फिगर यू ऑब्जर्व कि हाई ला ये दो ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट है। बेस्ड ऑन विच क्राइटेरिया? साइड एंगल साइड, क्योंकि साइड फिर एंगल फिर साइड, साइड फिर एंगल फिर साइड। अब सिर्फ ये लिखना है, एंड लिखने के लिए यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वन साइड। AC इज इक्वल टू CB। रीजन, L बाइसेक्ट्स AB, मतलब AB के इक्वल टुकड़े करता है, देयरफॉर AC CB सेम। ये हो गई साइड। एंगल C इज इक्वल टू एंगल C। रीजन, एंगल C इज 90, AB इज परपेंडिकुलर इसलिए 90। AB इज परपेंडिकुलर टू L या L इज परपेंडिकुलर टू AB। और तीसरा, PC इज इक्वल टू PC, ये तो सेम ही साइड है, रीजन इज कॉल्ड कॉमन आर्म। दोनों ट्राइंगल का एक आर्म कॉमन है तो वो इक्वल। देयरफॉर ट्राइंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPC। ये पूरी चीज में मैंने एक गलती कर दी, एक चीज में भूल गया। You have to write the name of two triangles when you start comparing. Triangle APC and triangle BPC. ऐसे लिखने का, in triangle APC and BPC, AC is equal to CB, why? Angle C is equal to angle C, why? PC is equal to PC, why? Therefore, triangle APC and BPC are congruent, but why? This is the final why. SAS theorem और SAS criteria। बट हमें ट्राइंगल प्रूव करने को नहीं कहा था, हमारा टारगेट था शो दैट PA इज इक्वल टू PB। तो PA PB सेम ही तो है, क्योंकि द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड PA और 90 डिग्री के सामने वाली साइड PB इज सेम। तो जैसे ट्राइंगल प्रूव हो गया, यू डायरेक्टली राइट देयरफॉर PA इज इक्वल टू PB, रीजन CPCT। मतलब ऊपर जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है उसी का कंक्लूजन है जो डायरेक्ट लिख सकते हैं, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2। Example 3. A line segment AB is parallel to another line segment CD. How do you show parallel lines and how do you not forget it? तो अगर parallel lines है जो तुम्हें भूलना नहीं है तो symbolically तुम ये कर सकते हो. You can draw arrows like this to help you remember कि ये दो parallel है. So write down example 3. Given AB parallel to CD. Next sentence, O is the midpoint of AD. O is midpoint of AD. ये देखो AD, तो AD ज्वाइन किया हुआ है और O midpoint है, और अगर AD का midpoint O है तो OA और OD सेम है,
तो इसके नीचे लिख दो therefore OA is equal to OD, and that is a time to pause because it brings me to another concept. Go back to your list of concepts and write down concept number 9. चार डंडियां ड्रॉ करो, ए बी सी डी ई एफ जी एच. सबके मिड पॉइंट एक्स एम पी वाई. और अब सीखो, इफ सीखो भी और लिखो भी. लिखो 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 इफ. और अगर तुम लिख नहीं रहे हो तो अभी का अभी लैपटॉप बंद करो, टीवी चालू करो, टीवी देखो. क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? इफ x इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर क्या ax is equal to xb is equal to half of ab. ax is equal to xb and both are equal to half of ab. सेम चीज इसके लिए लिखो, if m is midpoint of cd, therefore cm is equal to md is equal to half of cd. लेकिन उसका उल्टा भी हो सकता है, जो यहां पे लिखना है, if ep is equal to pf, then what? अगर ep और pf सेम है, then EP is equal to half of, सबसे पहला तो then if EP PF are same, then P is midpoint of EF. That's the first conclusion. And second conclusion, EP is equal to PF is equal to half of EF. ये हाफ वाला बहुत काम आएगा, ध्यान से लिखते रहो. इसके लिए भी लिखो, इफ GY इज इक्वल टू YH, तो क्या, देन द कंक्लूजन इज Y इज मिड पॉइंट ऑफ GH, एंड दूसरा कंक्लूजन GY इज इक्वल टू YH इज इक्वल टू हाफ ऑफ GH. और इतना ध्यान रखना, हाँ देखो एक हो गया, इतना लिख दो. कॉन्सेप्ट नंबर 9. और एक माइक्रोस्कोपिक सम देखो, P Q A given PA is equal to AQ. To prove to QA is QP. PA is equal to AQ को फिगर में दिखाओ. ये कॉपी कर ही लो एज एन एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, ऐसे लिख दो एंड डू इट समवेयर. इट्स ऑल अबाउट राइटिंग प्रैक्टिस. PA इज इक्वल टू AQ मतलब ये और ये सेम है. प्रूफ में पहली चीज लिखोगे व्हाट इज गिवन, PA इज इक्वल टू AQ गिवन, देयरफॉर A इज मिड पॉइंट ऑफ PQ. Yes.
and if A is midpoint of PQ, therefore PA is equal to AQ is equal to half of PQ. ये अभी अभी सिखाया 4 बार लिख के. therefore यहां पे देखो 2 QA और QP चाहिए, 2 QP और QA चाहिए. so write AQ is equal to half of PQ. 2 सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2AQ is equal to PQ. सिर्फ नाम बदलो, AQ का QA कर दो, PQ का QP कर दो. Suddenly your sum is over. You have proved 2QA is equal to QP. Copy this down. This is one of the most microscopic sums, and copy it with the figure. Let's go back to example number 3. AB is parallel to CD. O is the midpoint of AD. Therefore OA is equal to OD is equal to, एक और चीज लिख सकते हैं जो लिख देने की, काम में आए तो ठीक, ना काम में आए तो कुछ नहीं. OA is equal to OD is equal to half of AD. Target number 1 लिखो, prove that and write down this AOB congruent to DOC, and second में लिखो O is also the midpoint of BC. Proof. जो दो ट्राइंगल टारगेट है उनको ड्रॉ करो. AOB and DOC are target. Draw exactly the way they look, and whatever their position it should not change. वो तेरी AOB DOC ऐसा कुछ है. DOC AOB. Now fill in the information which you have. OD OA same. OD OA सेम. ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है जो सेम. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंगल O ये खुद निकाला है. दिस इज आवर टैलेंट, बाकी दिया नहीं था. एंड अनदर थिंग विच आई क्लियरली सी, इफ CD इज पैरेलल टू AB एंड दिस इज ट्रांसवर्सल, तो ये दो एंगल सेम नहीं है. Z फॉर्मेशन, interior angles, alternate interior angles. Therefore angle D and A are same. Now 3 things have come on the floor. Is there a theorem which sets perfectly? You have to think. S सारी साइड सेम नहीं है. A तो क्राइटेरिया ही नहीं है. SAS दो साइड और एक एंगल, साइड तो एक ही है. ASA जी हां, एंगल ये रहा, फिर साइड ये रही, और फिर दूसरा एंगल. सो दो एंगल और बीच की साइड is ASA criteria which is perfect for proving these two triangles congruent. तो क्या होता है ज्योमेट्री का स्ट्रेटेजी? क्वेश्चन पढ़ के गिवन लिखो, उसके बाद फिगर ड्रॉ करो. फिगर एकदम रैप्चिक भरचक होना चाहिए. उस फिगर में से दो ट्राइंगल निकालो जो हमको प्रूव करने हैं, और वो दो ट्राइंगल को रैप्चिक भरचक करके लिखना शुरू करो. What will we write? फिगर देख के लिखना, कौन सा बाय हार्ट करना है. You have to see the figure. OD is equal to OA. OD is equal to OA. Angle O is equal, reason given. Okay. Angle O is equal to angle O. Reason. Vertically opposite angles. And angle D is equal to angle A. Reason. Alternate interior angles
जहां पे CD इज पैरेलल टू AB एंड CB नहीं AD ट्रांसवर्सल, यू हैव टू राइट कौन पैरेलल कौन ट्रांसवर्सल। लेसन 6 का कॉन्सेप्ट यूज करने के पहले कौन पैरेलल कौन ट्रांसवर्सल लिखना जरूरी है और कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर ट्राइंगल ये DOC is congruent to triangle ये AOB। रीजन ASA क्राइटेरिया, दो एंगल और बीच वाली साइड सेम है, therefore triangles are congruent। That's the end of first part, show AOB DOC। but it's a good habit कि तुमने भले DOC AOB लिखा है, finally you have to write therefore triangle AOB DOC are congruent। Second proof which we require, दूसरी चीज हमें प्रूव करनी है कि O BC का मिड पॉइंट है। BC का मिड पॉइंट O, वो प्रूव करने के लिए क्या किया जाए? O is the midpoint of BC, तो टारगेट इज आई हैव टू शो OC OB सेम, और OC OB सेम दिखाने के लिए आई गो बैक टू दिस ट्राइंगल्स और मैं देखता हूं कि बॉस ये क्या है। बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट अकॉर्डिंग टू ASA थियरम। ASA के हिसाब से दोनों ट्राइंगल प्रूव हो चुके हैं कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ये एंगल के सामने OB और वही एंगल के सामने OC सेम है, OB इज इक्वल टू OC। रीजन CPCT। CPCT मतलब जो दो ट्राइंगल प्रूव कर दिए उसके बाकी के पार्ट सेम है, मेरी मर्जी में कौन सा यूज कर रहा हूं। एंड OB इज इक्वल टू OC, देयरफॉर O इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो हमने कॉन्सेप्ट में लिखा है। फाइनली द सम इज ओवर। एग्जाम्पल 3, थ्री एग्जाम्पल्स के बाद ये क्या एक्सरसाइज शुरू हो गई? थिंक सो। लेट्स लुक एट द टेक्स्ट बुक। Yes, in quadrilateral ACBD, AC is equal to AD in quadrilateral ACBD. So we are not starting the exercise today. I will give you a worksheet to practice the sums. और फिलहाल वीडियो में से तुम्हारा होमवर्क रहेगा नंबर 1, मेक अ लिस्ट of 9 small concepts, जो सबसे पहली स्लाइड पे है, दिखा दो एक बार। ये रहा। स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट बेसिक, लीनियर पेयर, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर एंगल, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मिड पॉइंट, एक्सेट्रा। After writing those 9 small concepts, second thing you have to write is 6 concepts, 1 2 3 4 5 6। 6 के 6 में दो ट्राइंगल ड्रॉ करवाए थे और हर एक में हमने एक एक थियरम टैकल किया, लाइक SSS, RHS, ASA, SAS and AAS। Can you guess which is a wrong theorem? एंगल 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 कभी नहीं यूज कर सकते और एंगल साइड साइड नहीं यूज कर सकते।
ये याद रखना पड़ेगा, लिस्ट में लिख देना एंगल 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 एंड एंगल साइड साइड नॉट अलाउड. And the third thing I want you to write down from the video is example 1, 2 and 3. शुभरात्रि, शबा खैर. छोटा सा होमवर्क भेजूंगा, वो भी कर लेना और सारी चीज़ों के फोटो निकाल के ईमेल कर देना. थैंक यू सो मच. बाय.